to Maths Express. Today we are doing word problems on linear equations. So let us get started. The first question here says, if 11 subtracted from a number equals 25, find the number. जब भी हम word problems करते हैं, इसमें like you see we need to find the number. तो जो भी हमारी unknown quantity होती है, उसको हम x assume करते हैं. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x, y, z, a, b, c, d, but we always use x. So we say let the number be x. So हमारा first statement होता है हमेशा let the number be x. So जो भी हमारी unknown quantity है उसको हम x assume कर लेते हैं. इसमें हमें number find करना है. So first statement is let the number be x. Now we need to read the problem very carefully to form the equation. हमें इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना है. उसके बाद हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है. उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. So according to question, I am writing short form for according ACC. So according to question, we have 11 subtracted from the number. That means अगर इस नंबर x से हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे that is equal to 25. तो हमारा नंबर है x. x में से हमें 11 सब्ट्रैक्ट करना है and that is equal to 25. Now another important tip, अगर आपको पता है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, आपको लगेगा हमने x माइनस 11 क्यों किया है, 11 माइनस x क्यों नहीं किया है. तो इनको दोनों को समझने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. तो नंबर में से फ्रॉम के बाद जो भी आता है उसको हम पहले लिखते हैं. तो फ्रॉम के बाद आया है अ नंबर और इस नंबर को हमने x अज्यूम किया है. तो x को हम पहले लिखेंगे और 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट तो बाद में लिखेंगे -11. So we have x minus 11 is equal to 25. That means we have formed the equation now. अब इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब हमें इसे सॉल्व करना है. Now x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. So that is equal to right hand side I have already got 25, minus 11 goes here and becomes plus 11. So we get x is equal to 36. So we have the required number is equal to x, which is equal to 36. Now let us see our next example. Here it says thrice a number when increased by 7 gives 70. Find the number. अब इसमें हमें नंबर फाइंड करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज लेट द नंबर बी x. सो वी अज्यूम लेट द नंबर बी x. Let the number be x. Now according to question, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे and we will form an equation. The question says thrice a number. Thrice a number means 3 times the number. 3 times. Suppose I have got 5. 3 times 5 means हम 5 को 3 से multiply करेंगे, right? Similarly, अगर हमारे पास नंबर x है, तो thrice a number means 3 times the number. 3 times x, 3 को हम x से multiply करेंगे, and that is equal to 3x. So 3 times the number, thrice the number means 3x. So here we have 3 times the number, thrice a number, 3x, when it is increased by 7. Increased means plus, और अगर क्वेश्चन में डिक्रीज है, डिक्रीज मीन्स माइनस. सो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है increased by 7, so plus 7, और अगर decreased by 7 होता तो minus 7, and that gives 70. That means this is equal to 70. So 3 times the number, twice the number, increased by 7 plus 7 gives 70 equal to 70. Now we will solve the equation. So we get 3x plus 7 को हम right hand side लेकर जाएंगे. Plus 7 becomes minus 7. 3x is equal to 63. अब यहाँ पर हम 3x है. That means we are multiplying 3 by x. So यहाँ जाकर हम 3 से divide करेंगे. 63 upon 3 that is equal to 21. Now the next question. The next question says the sum of 3 consecutive natural numbers is 129.
Find the numbers. Now you all must be knowing what are natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, all are natural numbers. And consecutive means one after the other. So कोई भी 3 consecutive natural numbers अगर है, suppose हमारे पास नंबर कोई भी फर्स्ट consecutive नंबर अगर हमारे पास 35 है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इसके बाद वाला नंबर आएगा 36 और 36 के बाद वाला नंबर आएगा 37। दैट मीन्स अगर आपका पहला नंबर 35 है तो आपने 35 में 1 ऐड किया तो आपको 36 मिला और 35 में 2 ऐड किया सो यू गेट 37। So 35 plus 2 gives you 37। अब क्योंकि इसमें हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप पहले नंबर को हमेशा सपोज कोई भी पहला नंबर है उसको आप x मानेंगे। तो x के बाद वाला नंबर हमारा कौन सा होगा? हम बाद वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे x में तो हमें इसके नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा और इसके नेक्स्ट वाले नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा। तो हमने 35 को अगर x अज्यूम किया है तो नेक्स्ट नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 37 मिलेगा, राइट? तो जब भी हम 3 consecutive natural numbers की बात करते हैं तो हम फर्स्ट नंबर को हमेशा x अज्यूम करेंगे, सेकेंड नंबर x plus 1 एंड थर्ड नंबर इज x plus 2। अगर आपको 2 consecutive numbers फाइंड करने हैं then in that case you assume x and x plus 1 and if you want to find 4 consecutive natural numbers so first number x, second x plus 1, third x plus 2 and the fourth number you can assume x plus 3। So ये एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है कि जब भी आपको consecutive natural numbers फाइंड करने हैं then you assume it as x, x plus 1 and so on। So now we assume the numbers to be x, x plus 1 and x plus 2। So we say let the numbers be x, x plus 1 and x plus 2। Now according to the question says the sum of the 3 consecutive natural numbers is 129। That means तीनों numbers का sum is equal to 129। So first number हमारा x है plus second number x plus 1 plus third number x plus 2 and the sum of all these 3 numbers is equal to 129। Now we have formed the equation. Next step is to solve the equation. So let us simplify x plus x 3 times x so we get 3x। Constant terms को ऐड करेंगे 1 plus 2 is 3 is equal to 129। So variable को हम left hand side रखेंगे, this constant we move to right hand side so plus 3 becomes minus 3x is equal to 126 and क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जाके हम डिवाइड करेंगे 3 से। We divide 3 4 the 12 and 3 2 the 6। So हमारी x की वैल्यू आ गई है 42। That means now we have the first number। फर्स्ट नंबर को हमने x अज्यूम किया था। If you see here the first number was x। So फर्स्ट नंबर हमारा x है और x की वैल्यू हमारी आई है 42। Second number, if you see here the second number we have assumed as x plus 1। So second number हमारा x plus 1 है और x की वैल्यू हमारी 42 है। So हम 42 में 1 ऐड करेंगे and we get 43। And coming over to the third number को हमने if you see here we had assumed the third number to be x plus 2। So हम third number हमारा है x plus 2 और x की वैल्यू हमारी 42 है। 42 में हम 2 ऐड करेंगे and we get 44। So we have got all the 3 numbers 42, 43 and 44। These are the 3 consecutive natural numbers। Now coming over to the next question। The next question says the sum of 2 consecutive even numbers is 54। Find the numbers। Now इस केस में क्या डिफरेंस है? हमने जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें था
consecutive natural numbers. Now we have consecutive even numbers. Now you all must be knowing even numbers. 2, 4, 6, 8 and so on are all even numbers. So अगर हम कोई भी even number पहले assume करते हैं, suppose हमारे पास number 12 है, तो 12 के बाद वाला next even number हो जाएगा हमारा 14, and then उसके बाद वाला next even number हो जाएगा हमारा 16, right? So अगर हमारा 12 है नंबर, तो 12 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा, और सिमिलरली अगर 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 16. तो इस केस में जब भी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं, तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर इवन नंबर नेक्स्ट इवन नंबर हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि नेक्स्ट इवन नंबर में हम प्लस 2 करेंगे, और उसके बाद वाले इवन नंबर में हमें प्लस 4 ऐड करना पड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 4. So you need to remember कि जब भी हम consecutive even numbers की बात करते हैं, तो हमारा फर्स्ट नंबर x होगा, सेकेंड x प्लस 2, थर्ड नंबर x प्लस 4. एंड सिमिलर इज द केस विद द ऑड नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑड नंबर्स हमारे पास आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. तो अगर आप देखेंगे ऑड नंबर्स में भी हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है. तो जब भी आप कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करें या फिर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करें, तो फर्स्ट स्टेप होगा आप नंबर्स को जब अज्यूम करेंगे तो फर्स्ट नंबर होगा x, नेक्स्ट x प्लस 2 एंड देन x प्लस 4. सो ये वाला जो अजम्पशन है ये ऑड और इवन नंबर्स के लिए सेम रहेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, सो यू अज्यूम द नंबर्स एज x, x प्लस 2 एंड x प्लस 4. तो हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा लेट द नंबर्स बी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, सो वी से लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, क्योंकि इस केस में हमें सिर्फ 2 ही नंबर फाइंड करने हैं. एंड द क्वेश्चन सेज सम ऑफ बोथ द इवन नंबर्स इज 54. दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो वी हैव according to question, first number is x plus second number x plus 2 and sum of both the numbers is equal to 54. So first let us now simplify. X plus x is 2x plus 2 is equal to 54. Now this plus 2 we need to shift to right hand side, so we get 54 plus 2 becomes minus 2. 2x is equal to 52 and now we need to divide by 2, so 52 upon 2 is equal to 26. So हमारी x की वैल्यू आ गई 26. That means हमारा जो फर्स्ट इवन नंबर है that is 26. So we say first number, so we can say first number को हमने x अज्यूम किया था यहाँ पर, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 26, एंड द सेकेंड नंबर इज x प्लस 2. सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 26, सो 26 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 28. So we have got both the even numbers. First is 26 and the second one is 28. Now this question says two numbers are in the ratio 3:4 and the sum is 56. Find the numbers. Now ऐसे question जब हमें ratio given है, तो इस केस में जैसे कि ratio given है हमें 3:4. So we have given ratio is equal to 3:4. That means फर्स्ट नंबर का रेशियो 3 है, सेकेंड नंबर का रेशियो 4 है. तो ऐसे केसेस में हम फर्स्ट नंबर को 3x अज्यूम करेंगे और सेकेंड नंबर को 4x अज्यूम करेंगे. सो वी से लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू 3x एंड सेकेंड नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं 4x. सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4x. तो जो भी आपको रेशियो गिवन होगा उसमें लाइक हियर 3 गिवन है, तो फर्स्ट नंबर 3x
सेकंड 4 गिवन है तो सेकंड नंबर 4x, अगर थर्ड गिवन है तो थर्ड नंबर हो जाता हमारा, अगर यहाँ पर सपोज हमारे पास होता रेशियो 5 तो थर्ड नंबर हो जाता हमारा 5x। सो आपको ऐसे ही अज्यूम करना है। सो फर्स्ट नंबर 3x, सेकंड नंबर इज 4x। और क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि दोनों नंबर्स का सम है 56। सो वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, we have the sum of both the numbers, that is first number 3x plus second number 4x is equal to 56. Now 3x plus 4x is equal to 7x. So 7x is equal to 56. So we get x is equal to, अब क्योंकि हम यहाँ 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आके हम 7 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड पे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 8। तो हमारी x की वैल्यू 8 आई है। बट ध्यान रखिए दिस इज नॉट द आंसर, हमारे नंबर्स थे 3x और 4x, राइट। सो वी हैव द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 3 into x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 8, so 3 into 8 which is equal to 24, and the second number we have now, second number is equal to 4x, so we get 4 into 8 which is equal to 32। और जब भी आप अपने आंसर्स वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप उनकी जो वैल्यूज है उसको आप अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो यू गेट इफ इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। जैसे कि इस केस में 3x plus 4x is equal to 56। तो हमारी 3x की वैल्यू 24 है और 4x की वैल्यू 32 है, दोनों को हम ऐड करेंगे एंड इफ यू सी वी गेट द आंसर एज 56। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट।